Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 4 Waste Heat Recovery Unit Cogeneration and Trigeneration. Topic number 3 Trigeneration. Lecture number 19 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as Trigeneration, Need, Opportunities, Present Practices. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to explain with sketches working principle of trigeneration in the given thermal power plants. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कोजेनरेशन, इट्स नीड, अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस. तो कोजेनरेशन होता है टू प्रोसेस का जनरेशन, दैट इज द जनरेशन ऑफ टू साइकिल्स इन वन थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, दैट इज ए कोजेनरेशन. Introduction about the trigeneration. Trigeneration is the simultaneous production of three forms of energy: electricity, heating and cooling. जैसे कि हमने पढ़ा कोजेनरेशन में टू फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग. तो यहाँ पे ट्राइजेनरेशन में थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी. इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड कूलिंग. Then a trigeneration system can provide power, hot water, space heating and air conditioning from a single system. तो सिंगल सिस्टम के अंदर ये पावर प्रोवाइड करेगा, हॉट वाटर भी प्रोवाइड करेगा, स्पेस हीटिंग भी करेगा और एयर कंडीशनिंग भी करेगा इन बिटवीन ऑफ वन सिस्टम. दैट इज ए ट्राइजेनरेशन प्रोसेस. Generator lose heat as they create electricity. A trigeneration facility captures this heat that would otherwise be lost and use it to generate both hot and cold water. The chilled water is created by an absorption chiller, which is generated by the excess heat and which operates like a refrigerator. It creates water at sufficiently low temperature to be used for air conditioning. तो नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट होता है या स्टीम पावर प्लांट होता है जो टरबाइन के थ्रू से जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो हमारे इस ट्राइजेनरेशन फैसिलिटी और फैसिलिटी प्रोडक्शन में ऐसा होगा कि इस थर्मल पावर प्लांट के साथ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी, साथ में हमें हॉट वाटर यानी हीट एनर्जी मिलेगी और कोल्ड वाटर भी मिलेगा. दैट इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर बाय दिस प्लांट. दैट इज ए ट्राइजेनरेशन प्रोसेस. Development of trigeneration unit, as it was mentioned about, the trigeneration is the simultaneous production of three forms of energy, typically cooling, heating and power from only one fuel input. But another way, trigeneration power plant produce three different types of energy for the price of one. तो इस पावर जनरेशन में थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है, पर हमें प्राइस के अकॉर्डिंगली एक ही यूनिट का प्राइस रिक्वायर्ड है by these different three resources utilized. In general, the trigeneration energy system reach overall system efficiency of 86% to 93%. तो इस ट्राइजेनरेशन के यूटिलाइजेशन के वजह से जो हमारे प्लांट की 86% इफिशियंसी थी वो इंक्रीज होगी अप टू 93%. Typical central power plants that do not need the heat generated from the combustion and power generation process are only about 33% efficient.
तो आइए देखते हैं ट्राई जनरेशन बाय थर्मल एंड सोलर पावर प्लांट। तो हमने देखा कि कोजनरेशन कैसा होता है और ट्राई जनरेशन कैसे होता है। तो ये ट्राई जनरेशन के अंदर हमें थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर यूटिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको पैराबोलिक सोलर कलेक्टर दिख रहा है जो सोलर की सन की एनर्जी रेडिएशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है और ये स्टोरेज टैंक में हीटेड फॉर्म में स्टोर होगी। इस एब्जॉर्प्शन प्लेट की वजह से हीट एब्जॉर्ब हुई है और वो हमारी जाएगी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने की वजह से यहाँ पे जो वाटर आएगा वो क्या होगा, हीटेड होगा। ये हीटेड वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टीम टरबाइन में पास होगा। स्टीम टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलेगी। ये स्टीम जो रिमेनिंग बची है वो कंडेंसर के थ्रू फिर से सिस्टम के अंदर जाएगी और ये रिसर्कुलेट होगी, दैट इज द वन साइकिल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देन वही हीट एक्सचेंजर से हमें मिलेगा फिर से कोल्ड वाटर। यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक में हीट थी वो सन की थी, रेडिएशन के थ्रू हमने एब्जॉर्ब की थी और जिसका यूटिलाइज किया हमने वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्लैरिया साइकिल के अंदर। फिर वही हीट जो है यहाँ पे जो वाटर है अभी कैसे हो गया, कोल्ड हो गया, उसको हम DWH के फॉर्म में जनरेटर में डालेंगे और जनरेटर के थ्रू से फिर से हमें यहाँ पे सोलर साइकिल से पावर जनरेशन होगा और रिमेनिंग जो हीट है वो हम रिसर्कुलेट करेंगे बाय दिस पैराबोलिक कलेक्टर से स्टोरेज टैंक में। ये हमारी सेकंड साइकिल है जिसमें हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मिलेगी। तो ये डिफरेंट साइकिल से दो साइकिल हो गई जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलेगी। और थर्ड इज है हमारा यहाँ पे जो जनरेटर से हीट लॉस होगी वो जाएगी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने के वजह से एब्जॉर्प्शन चिलर के वजह से यहाँ की जो स्टीम फॉर्म था, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट्स था स्टीम फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन चिलर के वजह से कोल्ड में और ये फॉर्म रहेगा हमारा कोल्ड स्टोरेज। साथ में इसी के फॉर्म से हमें एक कंडेंसिंग भी मिलेगा जिसको हम इवेपोरेटर के थ्रू से एब्जॉर्प्शन को फिर से हीटेड कर सकते हैं और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा कंडेंसर से वो रहेगा हमारा कोल्ड वाटर। तो ये दो साइकिल हमें बता रही है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है बाय दिस अरेंजमेंट। बट यहाँ पे जो नीचे एक्सचेंजर और कंडेंसर है, इन दो प्रोसेस के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा जिससे हमें एब्जॉर्प्शन चिलर में कोल्ड वाटर मिलेगा तो कंडेंसर के इसमें हॉट वाटर मिलेगा। तो ये साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये थ्री फॉर्म ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोसेस है। यहाँ पे थ्री साइकिल्स को हमने एक ही सिस्टम के अंदर कंबाइन किया है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्राई जनरेशन बाय थर्मल एंड सोलर पावर प्लांट बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, cold water and hot water generation. Now the time is to discuss about the advantages of tri-generation. तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है ऑपरेटेड विद हीट यूटिलाइजिंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एक्सेस एनर्जी। तो इसका जो ऑपरेशन है वो विथ हीट से ऑपरेट होगा और इनएक्सपेंसिव है यूटिलाइजेशन के लिए क्योंकि जो वेस्ट हीट जाने वाली थी उसको ही हमने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज किया। Produce electricity can be fed into a public grid or used to cover electricity requirement of the plant. During cold season, the heat can be utilized to cover heat requirement. No moving parts in absorption chiller, no wear and therefore low maintenance expenses. तो इस सिस्टम के लिए सबसे कम expenses required है for the maintenance. नॉइजलेस ऑपरेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है तो यहाँ पे नॉइजलेस है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट। वाटर एज रेफ्रिजरेंट, नो यूज ओजोन डैमेजिंग सब्सटेंसेज। एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेशन technology offers the most established and economic solution for reduced immersion. Air conditioning system. Time is to discuss unique outcome achieved by this video lecture as explained with sketches working principle of tri-generation in the given
थर्मल पावर प्लांट्स। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, आज हमने देखा ट्रांसजनरेशन प्रोसेस एंड इट्स नीड, अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस इन स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped in this video lecture. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 19. All of you write the questions of this assignment and solve in your copy and submit as a assignment number 19 in Genoveno site. Explain need of trigeneration plant. Explain trigeneration process with neat sketch. Write advantages of trigeneration process. For solving this question, you watch this video again and refer the notes which will provided in Genoveno site. There will be some difficulty and not solved by reading the notes and watching the video. Then contact to subject team. Thank you. Happy learning. Stay online.